अनाज दड़े सुपरफाइन, गरगंटी तो माइक्रोफाइन। નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે ઝરણા। આજે અમે કંઈ શોધીશું નહીં, આજે શિવના ગણ આપણી સમક્ષ હશે। સાચું સાંભળ્યું તમે, ભગવાન શિવનો અંશ એકદમ અનોખી એક આંખોની સામે હશે, સાક્ષાત જીવિત શ્વાસ લેતો, જેને જોઈને પહેલા તો લોકોના રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા અને પછી તેને એક પછી એક ચમત્કારો કર્યા તો શક્તિના દર્શન કરવા માટે ભીડ ઉમટવા લાગી। આજના યુગમાં આ બધું અસંભવ લાગી રહ્યું છે। અમને પણ લાગ્યું હતું, પણ જેવા ત્યાં પહોંચ્યા તો વિશ્વાસ કરો, અમે જે જોયું, જે સાંભળ્યું, જે સમજ્યા તે દરેક વસ્તુઓ અમને સ્તબ્ધ કરી દીધા। આ બધી જ ઘટનાઓ, તસવીરોને અમે કેમેરામાં કેદ કરી। एकदम झड़पी, हुमला माटे तैयार, मोमा झेरनी पोटली, शरीर में वीजળી જેવી સ્ફૂર્તિ, ગુસ્સાથી ભરેલો છે ઝેરનો બાદશાહ। છંછેડશો તો ડંખ મારશે, खतरो अनुभवशे तो छोड़शे नहीं। आ जेने डंके ते पाणी पण नथी मांगतो। आ छे कोबरा। पण जो कोई काळो झेरीलो नाग आ लक्षणोथी एकदम विपरीत होय तो छे ने चमत्कार। न फेण उठावे छे न डंखे छे। विश्वास न आवतो होय तो जाते स्पर्श करी जुओ, जेम आ बधा स्पर्श करी रह्या छे। आने जोई निष्णातो पण गोतू खाई गया। ये कोबरा का बिहेवियर नहीं है, इतना शांत होना और इतना स्लो चलना, ये दो अलग बिहेवियर है। तो हम लोग दर्शन करने आए थे और बकरी को लेकर आए और उनकी धूल उठा के बकरी को लगाए, बकरी सही हो गई, सबूती लगाई, पंडा जी ने दिया, उससे हमने कल लगाया तो उससे आधा फर्क पड़ा। तो आराम मिला, कुछ फायदा बच्चे में दिखा? हाँ, बच्चा आराम। अच्छा, पहले एड़ी नहीं टेस्ट था? हाँ, एड़ी ऐसी है। अब एड़ी टेस्ट है। ऐसी डॉक्टरों माटे मात्र एक नाग, साप निष्णांतो माटे कुदरतनो चमत्कार। આજે આ બધા ચમત્કાર અમારી આંખોથી જોઈશું, સાપને હાથોથી સ્પર્શ કરીશું, ડોક્ટરો અને જીવ વિજ્ઞાનીઓ પાસે તપાસ કરાવીશું। લોકોના દાવામાં કેટલો દમ છે તે ચકાસીશું, પારખીશું। આજે સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં કહાની તે નાગની જે ખુદ એક ચમત્કાર છે। જોયું તમે? કંઈ ખબર પડી? હજુ તો તમે કંઈ જોયું જ નથી। આ કહાનીની એક એક તસવીર, એક એક દાવ, અમારા કેમેરામાં કેદ થયેલી સાપની એક એક વર્તણૂક, તે બધામાં તમને એક નવું રહસ્ય જોવા મળશે। અમને તો તે ખબર પડી હતી કે મધ્યપ્રદેશના છત્તરપુરમાં નાગપંચમીના દિવસે એક સાપ જોવા મળ્યો। તે લોકો વચ્ચે આવીને બેસી ગયો અને ત્યારનો ત્યાં જ બેઠેલો છે। शंकर भगवान की जय, बोलो मतंगेश्वर महाराज की जय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नाग बाबा हशे, हवंत कुंड हशे,
બીમાર લોકો અને પછી થશે ચમત્કાર. शंकर भगवान की जय, नागेश्वर महाराज की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय. આજે દુનિયા ફરી જોશે ભગવાન શિવની શક્તિ. આજે બધા જોશે શિવના આ ગણનો જાદુ. આજે અમે જોઈશું એક નાગની તપોસ્થળી, એક વૃક્ષ જેની નીચે એક સાપ. આ સાપની ચારે બાજુ મેળા જેવો માહોલ. અમે આજ સુધી ના આવું જોયું હતું, ના સાંભળ્યું હતું. આ ચમત્કાર છે કે કોઈ અજુબો કે કંઈક બીજું? લોકોએ કહ્યું કે નાગરાજ કોઈને ડંખતા નથી, તમે સ્પર્શ કરો તો પણ ડંખ નથી મારતા. અમે કહ્યું કે જો આવું હોય તો સ્પર્શ કરીને બતાવો. હજારો લોકો હોવાથી હવે દૂરથી દર્શનની જ પરવાનગી છે. અમે કહ્યું કે અમે કેવી રીતે માની લઈએ, તો લોકોએ એક વિડીયો બતાવ્યો. ના, આ શક્ય નથી. બધું આંખોની સામે થયું, છતાં પણ વિશ્વાસ નહોતો આવી રહ્યો. પાસે જાઓ તો ફૂફાડા મારે, સ્પર્શ કરો તો ડંખ મારે. ઝેરીલો નાગ શાંત બેઠો છે, કોઈ સાધના કરતા સાધુની જેમ શાંત. કોઈ પણ સ્પર્શ કરે તો જરા પણ ગુસ્સો નહીં. કોઈ હુમલો નહીં. લોકોએ કહ્યું કે આ શિવનો અંશ છે. નાગપંચમીના દિવસે જ્યારથી નીકળ્યા છે ત્યારથી એક પછી એક ચમત્કાર બતાવી રહ્યા છે. લોકોનો દાવો છે કે આ વૃક્ષ આ નાગની તપોભૂમિ છે, જેને છોડીને તે ક્યાંય નથી જતા. સાપ આમ તો માણસોથી દૂર ભાગે છે, પણ આ સાપ દૂર ગયા બાદ પાછો માણસો વચ્ચે આવી જાય છે. આવું કેવી રીતે થઈ શકે? પણ શું આ કારણને લીધે જ લોકોએ તેને શિવનું રૂપ માની લીધું? बकरी के दूध के साथ खून आ रहा था. डॉक्टर कह रहे थे कि वो जो है थनरा रोग है और इस रोग में बकरी बचती नहीं है. यहाँ जो है नाग देवता निकले थे, हम लोग दर्शन करने आए थे. फिर बकरी को लेकर आए और उनकी धूल उठा कर बकरी को लगाई. बकरी सही हो गई, दूध सही आने लगा. આ ઘટનાએ અહીં બધું બદલી નાખ્યું. લોકોએ બકરીના સાજા થવાને ચમત્કારનું નામ આપી દીધું અને નાગને દેવતા માની લીધા. પછી શું હતું? એક નાના ગામની વેરાન ભૂમિ અચાનક લોકોથી ઉભરાવા લાગી. મેળો લાગ્યો. સાપની ચારે બાજુ વાડ લગાવી દેવામાં આવી. લોકો દૂધ, ફૂલ અને મીઠાઈ ચઢાવવા લાગ્યા. હવન કુંડમાં નાગ દેવતાના નામથી આહુતિ આપવામાં આવી. સેંકડો કિલોમીટર દૂરથી લોકો બીમારીઓની સારવાર માટે આવવા લાગ્યા. अभी तक तो लोग बाग आते हैं, सब लोग विश्वास करते हैं, छूते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई किसी के ऊपर उसने अटैक किया हो. बाकी सभी लोग, बहुत से लोग डरते हैं तो नहीं छूते हैं, और जो निडर होकर छूते हैं तो मूवमेंट नहीं करते हैं. वो जहरीला सांप है, इसको काला सांप बोलते हैं, और इसके डसने से लोग कहते हैं कि इतना तेज है कि अगर आधे एक घंटे इसका इलाज ना मिले तो व्यक्ति ख़त्म हो सकता है. इतना तेज है. और अभी ये नया है, मतलब बूढ़ा नहीं है, बोलते इसको पोंड़ है कि मतलब 1-1.5 हाथ का है. मतलब बहुत तेज जहरीला सांप है. બકરી શું સાજી થઈ? તમે લોકોએ તેને ચમત્કાર માની લીધો. આ સાંભળી લોકો નારાજ થઈ ગયા.
તેમણે એક એક કરીને કેટલાય લોકોને અમારી સમક્ષ હાજર કરી દીધા। खुजली होती थी सर हमारे, तो हम कम से कम 2 महीने से दवाई करा रहे। अभी कल यहाँ आए तो उसमें आधा आराम मिला हमको। तो दवाई वगैरह ली थी, कितना खर्च हुआ था, क्या हुआ था उसमें? खर्च हुआ था सर हमारा 2000 रुपया, 500 2-3 बार गए। दीक्षित डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने मलहम दिया था, तो उससे आराम लगता था, लेकिन उतना नहीं लगता था। यहाँ का जो भभूति लगाई पंडा जी ने दिया, उससे हमने कल लगाया तो उससे आधा फर्क पड़ा हमें। नाग पाँचे हैं, नाग पंचमी पे आया था। हाँ नाग पंचमी परकम्मा लगाओ, सो जो बस हमने परकम्मा दबाओ पकड़ के, और उतने से हमें आराम जान पर जो एड़ी उपटाक है निगत तो ऐसा, तो इसकी एड़ी ऐसी बैठ गया तो निगल लगो, सो निंग के आता है, वो निंग के परकम्मा देता है, हमें यहाँ से आराम मिला है। तो आराम मिला, कुछ फायदा बच्चे में दिखा? हाँ बच्चा हाँ आराम है। अच्छा, पहले एड़ी नहीं टेकता था? हाँ एड़ी ऐसी रहती, अब एड़ी टेक रहा अब है। ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, सही निगल लगो, अच्छा, सही निगल लगो तो हमें आराम जान पड़ो, तो हम इधर आते हैं उनके दर्शन करके कि इसको सही करो आप। જો નાગમાં ચમત્કાર હોય તો બધા સાજા થઈ ગયા હોત। ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે ડોક્ટર પાસે પણ ક્યાં બધા સાજા થાય છે। અમે લોકો સાથે વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે લોકોના જયકારા સંભળાવા માંડ્યા। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बोलो मतंगेश्वर महाराज की जय। અમે તે તરફ ભાગ્યા। અમે ત્યાં જે જોયું તેને અમારા કેટલાય તર્કોને ભાંગી નાખ્યા। देखिए 24 घंटे से ज्यादा का करीबन वक्त मैंने बिता लिया है और अभी तक कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया था, लेकिन पहला मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अपने आप अपनी मर्जी से चलना शुरू किया। जैसा बताया था कि सुबह में इस तरह का होता है कि वो चला जाता है, और आप देखिए अपने आप, मतलब 24 घंटे से करीबन ही मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर जो नज़ारा था वो आपके सामने था कि बिल्कुल एक ही जगह पे स्टैटिक था। लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं, मूव करना शुरू कर दिया है। किस तरफ जाएंगे नहीं पता, लेकिन मूवमेंट पूरा दिखाई दे रहा है। मतलब जो हम कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कोई तकलीफ हो सकता है कोई परेशानी हो, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप पूरा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मैं देखिए अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चारों तरफ लोग रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, हर तरफ भीड़ है। लोग उस जो ये करिश्मा, ये चमत्कार जो हो रहा है, इसको देख रहे हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड किया जा सके, किस तरह से वो चमत्कार जो है लोगों के सामने लाया जा सके। जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई रास्ता सुबह होते ही एक स्पेसिफिक टाइम पे ये वॉक करना शुरू कर देता है, मतलब अपने आप में बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मैं इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा। ચાલો વિડીયોને ફરી જોઈએ। જુઓ, સાપ સરળતાથી આગળ વધી રહ્યો છે। શરીરનો દરેક ભાગ વાળી શકતો હતો, એટલે તેને કોઈ ઈજા નહોતી થઈ। તો પછી તે ફૂફાડા પણ મારી શકે છે, ડંખી પણ શકે છે। તો પછી તે લોકોને ડંખતો કેમ નથી? લોકો વચ્ચે ચૂપચાપ કેમ બેઠો છે? આ વાત અમને સમજાતી નહોતી। હવે અમે એક્સપર્ટને બોલાવીશું, પછી સમજીશું કે આ કોનો ચમત્કાર છે, નાગ દેવતાનો, વિજ્ઞાનનો કે કુદરતનો। વિજ્ઞાનના જે સિદ્ધાંતોથી અમે લોકોને સમજાવવા આવ્યા હતા તે તો ફેલ થઈ ગયા। સાપ ચાલ્યો ગયો તેને ઈજા નહોતી પહોંચી, છતાં પણ તે પોતાની પ્રકૃતિની વિપરીત કામ કેમ કરી રહ્યો હતો? અમે વિચાર્યું કે સાપ જરૂર બીમાર હશે, સાજો થઈને ચાલ્યો ગયો હશે, પણ લોકોએ કહ્યું કે આ ભ્રમમાં ન રહેતા નાગ બાબા ફરી આ વૃક્ષ નીચે જ ધૂણી ધખાવશે, ભગવાન શિવ પાસેથી મળેલી સિદ્ધિઓથી લોકોને સાજા કરશે। શિવ સત્ય છે, સત્ય માત્ર શિવ છે। લોકોનું કહેવું હતું કે અહીં કોઈ સામાન્ય સાપ નહીં, પણ ખુદ શિવની શક્તિ નાગરૂપમાં પધારી છે। આખું ગામ ભક્તિમાં લીન હતું।
અગરબત્તીમાંથી નીકળતો આસ્થાનો ધૂપ, હવનની આગમાંથી નીકળતો વિશ્વાસ, ચારે બાજુ ભગવાન શિવ અને નાગબાબાના નામની ગુંજ. લોકો માટે નાગનું આવવું જ ચમત્કાર હતું અને અમારા માટે રહસ્ય. સવાલ જેને સમજવા અને ઉકેલવા માટે અમે બે નિષ્ણાંતોને બોલાવ્યા. રાહ જોતા જોતા લોકો સાથે વાતચીતનો સિલસિલો ચાલુ રહ્યો. सुबह ऐसा हुआ कि वो 8 बजे गए, किसी दिन 3 बजे आए शाम को, फिर दूसरे दिन गए, मतलब आते जाते रहते थे. अभी सिर्फ 2 दिन से नहीं गए, 7 दिन तो बराबर आना जाना लगा रहा. લોકોએ કહ્યું કે આટલું બધું થયું છતાં પણ તમે કેમ માનવા તૈયાર નથી? સારું, થોડો સમય રોકાઓ. નાગદેવતા બપોરના સમયે ફરી ચમત્કાર બતાવશે. पैटर्न बताया जा रहा है कि पूरा एक पैटर्न है. सुबह 9 बजे वहाँ से फिर निकले, खेत में गए या इधर उधर जहाँ पर भी गए और घूम फिर के वापस 3 बजे दोपहर में पेड़ के नीचे लौट जाते हैं. तो अब हमारे पास सिवाय इंतज़ार के कोई चारा नहीं है. यहाँ पर आप पीछे देखिए, यहीं पर मौजूद है, बिल्कुल इसी स्पॉट पर फूल वगैरह आपको दिख रहे होंगे, वहीं पर नीचे मौजूद है. मेरी ये समझ में नहीं आया कि वहाँ से यहाँ तक क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा कोई खाने का सोर्स तो है नहीं. ईंटों का ढेर है, प्लास्टिक है, तो ऐसा खाने का कोई सोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर आया जाए. एस्केप करने की कोशिश होती, भागने की कोशिश होती, खुद को बचाने की कोशिश होती तो और दूर जाया जा सकता था. ऐसा नहीं था कि रास्ता नहीं था, बहुत सारा रास्ता था, लेकिन वो सब नहीं किया. यहाँ पर पहुँचने के बाद अपना मूवमेंट बंद कर दिया. अब क्या वापस मूवमेंट होगा, वापस जाएंगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता. लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा. सो लेट्स सी क्या होता है, इंतज़ार करते हैं तब तक. અમે કહ્યું કે સાપ છુપાઈ ગયો, હવે તે પાછો નહીં ફરે. ચાલો તે પણ માની લઈએ કે તમારા નાગદેવતા પાછા ફરશે. તો તે બતાવો કે સાપ આ વૃક્ષ નીચે જ વારંવાર કેમ આવે છે? તો લોકોએ કહ્યું કે આ વૃક્ષ નાગદેવતાની તપભૂમિ છે. તે ત્યાં તપ કરે છે અને શિવ ભક્તોના દુઃખોને દૂર કરે છે. इस तरह से शरीर पर बच्चों के भभूत लगाने का ये पहला मौका नहीं है. पिछले 24 घंटे में ऐसे 2500 केसेस में देख चुका हूँ कि लोग छोटे बच्चों को लेकर आए हैं और यहाँ पर भभूत लगा रहे हैं बीमारियों से इलाज के लिए. अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी जो वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये कि क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है और जो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो यूजुअली आपकी पहुँच से बाहर होती हैं, आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते. तो ये तरीका सबसे आसान दिखाई देता है और इसीलिए पिछले 24 घंटों में ऐसे 50 सैकड़ों चीज़ें मैं देख चुका हूँ कि बच्चे अलग अलग बीमारियों के साथ आ रहे हैं और उनसे उम्मीद के साथ लाया जा रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे. સાપનું નીકળવું તો દૂરની વાત, તે પોતાની જગ્યાએથી ટસનો મસ ના થયો. भोलानाथ तुम स्थान पे चलो, जैसे स्थान तुम आई निंग के उसी निंग के चलो, सबको ही दर्शन दो. ये कभी विराजमान करिए, अपने स्थान पे विराजमान करो. चलो अपनी जल्दी से सच्चाई दिखाओ फिर से महाराज, निंग के चलो आप. ત્યારે એક તરફથી અવાજ થયો. हम नाग देवता के पास इंतज़ार कर रहे थे और फिर शोर मचा के एक और नाग निकल आए हैं सड़क पे. तो लोगों की भीड़ भागी, तो साथ में मैं भी जाके देख रहा हूँ कि क्या है. हटे भाई, क्या है, हटो हटो हटो. तो ये एक छोटा सा सांप है यहाँ पर, ये देखिए बहुत छोटा सा है. और क्योंकि
इस वक्त बहुत फरवर है, बहुत ज़्यादा लोग जोश में हैं और हर तरफ चमत्कार तलाश रहे हैं, क्योंकि एक नाग देवता मौजूद है और बार बार निकल रहे हैं। 3 साल की हो गई, बोलती नहीं है, चलती नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करती है। 3 साल की बच्ची है। हाँ, जैसी है वैसी पड़ी रहती है। अच्छा अच्छा, भूखी रहे प्यासी रहे, कुछ खाती पीती। हाँ, अच्छा, तो आपने इलाज नहीं कराया, डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? 2-3 लाख रुपए के लगा दो मोड़ी में, 2-3 लाख रुपए के लग गए। 2-3 लाख रुपए लग चुके हैं इसके ऊपर इलाज पे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो फिर यहाँ का कैसे पता चला कि यहाँ नागराज के पास था? मालिक जब यहाँ पाई, को भी हुए जब मालिक बुला है। नहीं बुलाया तो सही, लेकिन आप पहली बार आए आज? हाँ, पहली बार। अच्छा, तो उम्मीद है कि ये बच्ची ठीक हो जाएगी? उम्मीद है। ये भरोसा होता है, लोग YouTube पे जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है और सबको ये उम्मीद है कि एक बार यहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लोगों को खबरें मिल रही हैं कि इस तरह से ठीक हो रहा है। बच्ची है 3 साल से, न बोलती है न चलती है, कोई रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन उसको लेकर आए और इसी उम्मीद से लेकर आए कि वो ठीक हो जाएगी यहाँ पर आने। તો આ સાથે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।